ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 10 ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2। ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਰਿਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 10 ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ BRS ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੁਛ MCQs ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਜ਼ਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਪਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਜ਼ਿਸ ਤੋਂ MCQ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਡ ਵਨ ਆਊਟ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਗੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛੂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਵੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਦੂਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਪੁੱਛੂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੌਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 4 to 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂਡ ਬਟ ਨੋਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਫॉर द ਪੇਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਗਿਵ ਸਮਵਨ ਅ ਚੈੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਟੂ ਪੇ ਦੈਮ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ। ਮਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਬੈਲੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬੈਲੈਂਸ ਮਤਲਬ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੌਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਉਨੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਏ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਚੈੱਕ ਸੈਂਟ ਫॉर ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਟ ਨੋਟ ਕਲੈਕਟਡ ਬਾय ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਹੋਣੇ ਆ ਚੈੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯੂ ਰਿਸੀਵਡ ਅ ਚੈੱਕ ਫਰੋਮ ਸਮਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਔਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਤਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਚੈੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡੈਬਿਟ ਐਂਟਰੀ ਪਾਤੀ। ਡੈਬਿਟ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੈੱਕ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੌਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ। ਪਰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੋਟ ਯੈਟ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਔਰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ठीक है कि दोनों करके, पर ये याद रखना किस रीजन करके पासबुक इनक्रीज हुई, किस रीजन करके कैश बुक डिक्रीज हुई। हुण जिहड़ा पहला पॉइंट से चैक इशू किया गया पर प्रेजेंट नहीं होया पेमेंट वास्ते, उहदे विच साडा कैश बुक घट सी एज कंपेयर टू पासबुक, बट जिहड़ा सैकेंड पॉइंट है उस साडा कैश बुक इनक्रीज होया एज कंपेयर टू पासबुक। तो ये सारे रीजनस तुहानूं पता होने चाहिए, मैं डिटेल दे विच सारा लिखिया। नैक्सट पॉइंट देखो, क्रेडिट मेड बाय बैंक फॉर इंटरस्ट लॉड बाय बैंक। ठीक है, हुण इस पॉइंट का मतलब की है, द बैंक हैज़ एडिड इंटरस्ट। हुण सानूं पता है साडे सेविंग अकाउंट ते चाहे साडा फिक्स डिपॉजिट है तो बैंक कुछ ना कुछ इंटरस्ट सानूं पे करती है ना, इंटरस्ट सानूं मिलदा अलो हुंदा, तो वो वाला इंटरस्ट तुहाडे पासबुक दे विच क्रेडिट कर दिता गया। तुहानूं कई बारी मैसेज भी आया होएगा तुहाडे अकाउंट वाले रजिस्टर्ड नंबर ते कि द इंटरस्ट इज़ क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, तो वो वाला इंटरस्ट तुहानूं मिल चुका है जो तुहाडे सेविंग अकाउंट ते मिलना से। एग्जाम्पल भी मैं इत्थे लिखिया सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, हुण ये एंट्री पासबुक दे विच तां हो गई क्रेडिट साइड। हुण क्रेडिट साइड क्यों हुई, क्योंकि बैंक वालों उन्हां दी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो उन्होंने पे करना सी, इस करके उन्होंने क्रेडिट साइड पाया है। ठीक है, तो पासबुक दे विच तुहानूं एंट्री मिल गई, बट तुसीं हजे कैश बुक दे विच इहनूं रिकॉर्ड ही नहीं किया, तुहानूं पता ही नहीं है कि इंटरस्ट इनकम तुहाडे कैश बुक दे विच आ चुकी है। ठीक है, इहदा इफैक्ट की होएगा, पासबुक का बैलेंस इनक्रीज हो जाएगा क्योंकि तुहानूं इंटरस्ट मिले है, तो कैश बुक का बैलेंस हजे रिकॉर्ड ही नहीं किया, तुहानूं पता ही नहीं है कि बैंक दे विच ये इंटरस्ट सानूं मिल चुका है। तो इहदा रिजल्ट की निकल के आएगा, कैश बुक तो उन्ना ही बैलेंस शो करेगा बट पासबुक का बैलेंस इनक्रीज हो जाएगा, इस करके कैश बुक डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू पासबुक। कैश बुक का बैलेंस लैस दैन होएगा एज कंपेयर टू पासबुक। आई होप तुहानूं ये पॉइंट भी क्लीयर है कि जिहड़ा इंटरस्ट तुहानूं मिलिया है वो हुण आपां पासबुक दे विच क्रेडिट किया है। क्रेडिट क्यों किया, इहदे रीजनस मैं तुहानूं लास्ट क्लास दे विच पूरे डिटेल दे विच कराए है, क्योंकि ये बैंक वालों उन्हां दी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इस करके उन्होंने आपां क्रेडिट करते हुंदे हाँ। ठीक है, अगे आ जाओ फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कह रहे डेबिट मेड बाय द बैंक फॉर बैंक चार्जेस कमीशन अदर चार्जेस। हुण ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है पॉइंट नंबर थर्ड का। हुण उत्थे सीगा क्रेडिट मिल रहे सी सानूं, इत्थे है डेबिट, मतलब कि बैंक साडे अकाउंट दे विचों कुछ चार्जेस डिडक्ट कर रहा है, जिद्दां बैंक चार्जेस हो गया, कुछ कमीशनस हो गया, वो साडे कोलों लै रहा है, मतलब बैंक कमीशन हो गया, ATM चार्जेस हो गया, SMS चार्जेस हो गया, प्रोसैसिंग फी हो गया, इन्हां दे पैसे कट्टे जा रहे हैं। तां करके द बैंक हैज़ डिडक्ट सम चार्जेस फ्रॉम योर अकाउंट, वो तुहाडे अकाउंट चों ये चार्जेस नूं डिडक्ट करेगा ते पासबुक दे विच डेबिट साइड पाएगा। डेबिट साइड क्यों पाएगा, क्योंकि वो बैंक नूं मिलना है, तो बैंक का एसेट है, इस करके वो डेबिट साइड पाएगा। डेबिट साइड पा दिता, बट कैश बुक दे विच उहदा कोई ट्रीटमेंट नहीं होएगा क्योंकि तुहानूं पता ही नहीं है तुहाडे अकाउंट दे विचों ये वाला पैसे कट्टे गए हैं ये वाले चार्जेस दे, द हैव नॉट येट रिकॉर्डेड इन इट योर कैश बुक। तो यदा इफैक्ट की निकल के आएगा, पासबुक का बैलेंस तो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि डिडक्ट किया गया डेबिट साइड के उत्ते पाया गया, पर कैश बुक दे विच कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई इस चीज़ की, इस करके रिजल्ट निकल के आया कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज, पासबुक का बैलेंस डिक्रीज। ए इस कॉज का रिजल्ट होएगा। ठीक है, नैक्सट पॉइंट है साडे को पेमेंट मेड बाय द बैंक। पेमेंट है जो वो बैंक ने की है इंश्योरेंस प्रीमियम की, बिल की, बिल्स पेबल की, कुछ इदा दी, और इस पॉइंट नूं आपां बोलते हाँ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शनस। ये याद रखना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हुण आपां पढ़ लैंदे वैसे इहदा मतलब की है, कहंदे समटाइम्स यू गिव स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक टू मेक रेगुलर पेमेंट्स ऑटोमैटिकली फ्रॉम योर अकाउंट लाइक। कहंदे कदे कदे इदां हुंदा है कि तुसीं अपने बैंक नूं इंस्ट्रक्शंस दे के रखते हो कि मेरी रेगुलर पेमेंट्स निकलनी है, तो तुसीं ऑटोमैटिकली उन्होंने डिडक्ट कर देना, मतलब निकाल देना, पे कर देना। जिद्दां इंश्योरेंस प्रीमियम की तुसीं इंस्ट्रक्शन दित्ती हुई है कि मेरे प्रीमियम की EMI जानी है, तो तुसीं उन्होंने मेरे अकाउंट की डिडक्ट कर देना, पे कर देना। लोन की EMI, इलैक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है, मोबाइल के रिचार्ज एक्सैक्ट्रा, तुसीं उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, तो वो पासबुक के विच तां ट्रीट कर दूगे तुहाडे बिहाफ ते और पे कर दूगे, है ना, तो वो पासबुक के विच डेबिट हो जाएगा। डेबिट क्यों हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तुहाडे बिहाफ ते पे किया, हुण उन्होंने तो तुसीं देना बैंक नूं तुसीं देना है, तो बैंक का एसेट हो जाएगा, इस करके उन्होंने डेबिट करांगे पासबुक के विच। पर हजे भी वो चीज़ कैश बुक के विच रिकॉर्ड नहीं की गई, कैश बुक के विच उन्होंने डिक्रीज नहीं किया गया कि ये पेमेंट हो चुकी है। तो इसका इफैक्ट की निकल के आएगा,
पासबुक का बैलेंस तो डिक्रीज हो जाएगा बट कैश बुक नॉट येट डन, उत्थे कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई इस चीज़ की, तो रिजल्ट के निकल के आएगा कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिखाया जाएगा एज कंपेयर टू पासबुक। तो इनू ही रिकनसाइल करने वास्ते आपां की बनावांगे BRS बनावांगे। नैक्सट कोज है साडे कोल कलैक्शन मेड बाय द बैंक डिविडेंड एक्सैक्ट्रा। ठीक है, कलैक्शन मेड की गई है बैंक के द्वारा डिविडेंड्स की, इंटरस्ट की, समथिंग इदा की। ठीक है, हुण देखो समटाइम्स द बैंक कलैक्ट्स मनी ऑन योर बिहाफ। हुण ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है 5th पॉइंट ते, इत्थे तुहाडे बिहाफ ते पेमेंट कर रहा सीगा बैंक, इत्थे तुहाडे बिहाफ ते ओह रिसीव कर रहा है। ठीक है, जिद्दां तुसीं द शेयर्स के उत्ते डिविडेंड रिसीव होएगा वो तुहाडा बैंक तुहाडे बिहाफ के उत्ते रिसीव कर लेगा। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के उत्ते अगर तुसीं इन्वेस्ट किया उहदे उत्ते जिहड़ा इंटरस्ट मिलेगा वो बैंक तुहाडे बिहाफ ते रिसीव कर लेगा। तुहाडे टेनेंट्स का कोई रेंट है वो जो रिसीव होना सी तुहानूं वो भी तुहाडे बिहाफ ते तुहाडा बैंक रिसीव कर लेगा अगर उन्होंने तुसीं दस्सिया है, इंस्ट्रक्ट किया है। तो बैंक ने ये सब चीज़ां तुहाडे अकाउंट दे विच ऐड कर दित्तियां होईयां क्रेडिट साइड के उत्ते। ठीक है, हुण मैं बार बार नहीं दसूँगी ये क्रेडिट साइड के उत्ते क्यों कर रहे हैं, जो चीज़ रिसीव हो रही है मैं लास्ट लैक्चर दे विच डिटेल दे विच कराया। पासबुक दे विच वो क्रेडिट साइड के उत्ते पा दूँगे तो पर तुहानूं हजे पता ही नहीं है कि वो चीज़ तुहानूं मिल चुकी है। ठीक है, तुहानूं इस बारे कोई नॉलेज नहीं है, सो यू हैव नॉट रिकॉर्डिड इट इन योर कैश बुक, तो तुसीं उहनूं रिकॉर्ड किया ही नहीं अपनी कैश बुक दे विच। तो यदा इफेक्ट की निकल के आएगा, पासबुक का बैलेंस इनक्रीज हो जाएगा, कैश बुक का बैलेंस कोई भी चीज़ उन्होंने तुसीं किया ही नहीं है तो नॉट येट रिकॉर्डिड। रिजल्ट की निकल के आएगा कैश बुक का बैलेंस घट हो जाएगा पासबुक के बैलेंस तो, इनू ही बाद च फिर तुसीं रिकनसाइल करोगे। आई होप तुहानूं पॉइंट नंबर 6 भी क्लीयर है। पॉइंट नंबर 7 है डिसऑनर ऑफ बिल्स और चैक्स। यू हैड कहते यू हैड रिसीव्ड अ चैक फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, तुसीं किसी कस्टमर तो चैक रिसीव किया सीगा और डिस्काउंटेड अ बिल विद द बैंक, और या तो तुसीं बिल नूं डिस्काउंटेड किया सी बैंक दे नाल। इहदा मतलब कि गॉट मनी बिफोर मैच्योरिटी, मतलब उहदा टाइम पूरा होने तो पहला तुहानूं पैसा मिल गया, ਉਹਨੂੰ बोल देंगे डिस्काउंटेड अ बिल। तो तुसीं मान लिया यू अज्यूम्ड यू वुड गैट द मनी सो यू रिकॉर्डिड इट इन अ कैश बुक। तुसीं मान लिया कि तुहानूं पैसा तो तुसीं उहनूं कैश बुक दे विच रिकॉर्ड कर लिता है। बट लेटर चैक और बिल वॉज डिसऑनर्ड, मतलब या तो बाउंस हो जाना है, ਜਿਹੜੇ कस्टमर तो तुसीं पैसा लेना सी ਉਹਦੇ अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ पैसा ही नहीं है कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ चैक जिन्ने ਦਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ चैक डिसऑनर्ड हो जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡਾ जिस परसन तो तुसीं पैसा लेना सी ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पे ਕੀਤਾ ही नहीं है, पर तुसीं कैश बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ एंट्री पा ਦਿੱਤੀ है, बैंक ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ कोई भी क्रेडिट की एंट्री नहीं हुई। बैंक ने जो क्रेडिट किया सी पहला जो उन्होंने समझा तो उन्होंने मिल चुका है वो दोबारा तो वो डेबिट साइड के उत्ते पा दोगे, लैस कर दोगे। ठीक है, बट यू हैव नॉट गेट रिवर्स द एंट्री इन योर कैश बुक, पर तुसी कैश बुक दे विच तो उन्होंने डेबिट कर चुके हो ना कि तुहानूं मिल चुका है, कैश बुक दे विच तुसी उन्होंने डेबिट कर चुके हो, पर तुसी उन्होंने कैश बुक दे विच क्रेडिट नहीं किया क्योंकि वो डिसऑनर्ड हो गया, तुहानूं पता ही नहीं है डिसऑनर्ड हो गया। इस करके पासबुक का जिहड़ा बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पासबुक दे विच जो चीज़ तुहानूं मिली सीगी प्लस होई होएगी ना, जो चीज़ तुहानूं मिली सी वो प्लस होई होएगी, बाद जो चीज़ डिसऑनर्ड होगी तो बैंक ने तुहाडे वल्लों माइनस कर दिता, तां करके बैंक ने तुहानूं माइनस कर दिता, पासबुक दे विच वो बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। बट कैश बुक दे विच तुसीं हजे कुछ नहीं किया, तुसीं ऑलरेडी उस चीज़ नूं प्लस कर चुके हो, तो तुसीं उहनूं रिवर्स नहीं किया, इस करके कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो किया जाएगा एज कंपेयर टू पासबुक। आई होप तुहानूं पॉइंट नंबर 7 क्लीयर है। आपां हुण चलदे हां नैक्सट पॉइंट दे उत्ते। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 कह रहा है इंटरस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट बाय बैंक। हुण ओवरड्राफ्ट के उत्ते बैंक तुहाडे उत्ते इंटरस्ट चार्ज कर रहा है। आपां पहला पॉइंट पढ़िया इंटरस्ट अलोड, ਉਹਦਾ मतलब की है कि तुहानूं इंटरस्ट मिलिया। ठीक है, वैन द बिजनेसमैन विड्रोज मोर दैन हिज डिपोजिट, जदों एक बिजनेसमैन अपने डिपोजिट्स तो ज़्यादा विड्रो कर लेंदा अपने अकाउंट चों, उन्होंने आपां ओवरड्राफ्ट बोल दिंदे आ। ठीक है, मान लो तुहाडे अकाउंट दे विच 10,000 सीगे पर तुसीं 20,000 निकाले, तो जिहड़ा 10,000 का डिफरेंस है ना, ज़्यादा निकालिया 10,000, वो तुहाडा ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। ठीक है, आई होप तुहानूं ओवरड्राफ्ट की डेफिनेशन क्लीयर है। हुण अगे है द बैंक गेव द फैसिलिटी ओनली कस्टमर्स हू ऑपरेट करंट अकाउंट। ठीक है, बैंक ये वाली फैसिलिटी उन्होंने ही देगा, उन्होंने ही कस्टमर्स नूं देगा जिन्हां दा करंट अकाउंट है। सेविंग अकाउंट ते ओवरड्राफ्ट की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती, तो बैंक तुहाडे ओवरड्राफ्ट के उत्ते कुछ इंटरस्ट चार्ज करेगा, वो तुहाडी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, बैंक ने डायरैक्टली उन्होंने डेबिट कर दिता तुहाडे अकाउंट के विचों, मतलब कि वो बैंक नूं मिलना है, बैंक का एसेट है, इस करके बैंक ने पासबुक के विच उन्होंने डेबिट कर दिता।
ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਯੈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੋਸਟ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ PRS ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰੋਗੇ। आई होप पॉइंट नंबर 8 भी दोनों क्लियर है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 कह रहा है चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हुण चैक बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਰਿਸੀਵਡ ਅ ਚੈੱਕ ਫਰੋਮ ਅ ਕਸਟਮਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਤੇ ਯੂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਇਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਟ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਯੂ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਟ ਇਨ ਯੂਅਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਤਾ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਧ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਔਨ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਪਾਸ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਫ ਬੈਂਕ ਰੋਂਗਲੀ ਡੈਬਿਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਸੈਟ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ ਔਨ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨ ਯੂਅਰ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੋ ਯੂ ਡਿਡੰਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਕ ਪੇਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੇਕ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਅਮਾਊਂਟ ਹੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ PRS ਬਣਾਓਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੀ ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਔਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10th ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਬੁੱਕ ज़्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू कैश बुक। आई होप तो 11 पॉइंट क्लियर है, एग्जैक्ट ऑपोजिट है पॉइंट नंबर 10 दे, ठीक है। नैक्सट देखो रिबेट ऑन, लास्ट पॉइंट है, फिर इस तो बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। रिबेट ऑन रिटायरिंग ऑफ बिल्स बिफोर ड्यू डेट तो पहला ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨ ਤੇ, ਜਲਦੀ ਪੇ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਰਿਬੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੂਟ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੇਜ਼ ਅ ਬਿਲ ਪੇਬਲ ਬਿਫੋਰ ਇਟਸ ਡਿਊ ਡੇਟ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦ ਬੈਂਕ ਅਲੋਜ਼ ਅ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐਜ਼ ਰਿਬੇਟ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਲਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰਿਬੇਟ ਦੇਗਾ ਕੌਣ, ਦ ਹੋਲਡਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਬੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਰਿਟਾਇਰਸ ਬਿਲ ਅਰਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਅਰਲੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਛੂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਬੇਟ। ਹੁਣ ਰਿਬੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਫॉर ਯੂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਤੇ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਜ਼ਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਲੈਸ ਦੈਨ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਚੈੱਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਪਾਸਬੁੱਕ।
क्रेडिट मेड्स बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट्स मेड कर दिते, मतलब तुहानू इनकम रिसीव हुई, इंटरस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ां तुहानू रिसीव हुई, तो बैंक ने तुहाडे अकाउंट 'च क्रेडिट कर दिता, ये नाल तुहाडा कैश बुक लैस दैन हो जाएगा पासबुक ते। नैक्सट है डैबिट, डैबिट मेड किते हैं तो तुहाडी पासबुक घट बैलेंस शो करेगी, घट बैलेंस शो करेगी मतलब कैश बुक विच रिकॉर्ड नहीं होया, कैश बुक इनक्रीज़ कर जाएगी। पेमेंट्स मेड बाय द बैंक, तुहाडे बिहाफ ते पेमेंट्स मेड कीतियां गईयां, कैश बुक दे विच कोई रिकॉर्ड नहीं किया गया, पासबुक दे विच उहनूं डैबिट कर दिता गया, पासबुक का बैलेंस डिक्रीज शो कर दिता जाएगा, पर कैश बुक दे विच उहनूं रिकॉर्ड नहीं किया गया, इस करके कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो होएगा। कलैक्शन मेड बाय बैंक, तुहाडे बिहाफ दे उत्ते बैंक ने कलैक्शनस मेड कीतियां, पासबुक दे विच बैलेंस इनक्रीज़ हो जाएगा, कैश बुक दे विच कोई ट्रीटमेंट नहीं होया, कैश बुक लैस दैन हो जाएगी पासबुक। इदां ही डिसऑनर ऑफ बिल्स, डिसऑनर ऑफ बिल्स दे विच तुसी पासबुक दे विच रिड्यूस हो गया बैलेंस, बट कैश बुक दे विच उहदा कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो कैश बुक ज़्यादा बैलेंस शो करेगा एज कंपेयर टू पासबुक। नैक्सट है इंटरस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरस्ट तुहाडा कॉस्ट है तो तुहानू चार्ज करना पै रहा है, पासबुक दे विच डिक्रीज़ हो जाएगा, बट कैश बुक दे विच कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इस करके कैश बुक इज़ ग्रेटर दैन पासबुक। नैक्सट है चैक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, चैक पे हो गया बैंक दे विच उहदी एंट्री हो गई है, बट कैश बुक दे विच तुसी करना भुल गए, तो पासबुक दे विच बैलेंस इनक्रीज हो जाएगा, कैश बुक दे विच रिकॉर्ड ही नहीं होया, तो कैश बुक का बैलेंस घट शो होएगा एज कंपेयर टू पासबुक। रोंग डैबिट कर दिता गया पासबुक दे विच बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, कैश बुक का करैक्ट बैलेंस है, कैश बुक इनक्रीज हो जाएगी पासबुक ते। नैक्सट पॉइंट सीगा साडे कोल रोंग क्रेडिट कर दिता गया है बैंक द्वारा, रोंग क्रेडिट करने का मतलब की है तुहाडा पासबुक इनक्रीज़ हो जाएगा, पासबुक इनक्रीज़ हो जाएगा, कैश बुक का सही है तो आप कह सकते हैं कैश बुक इज़ लैस दैन पासबुक। नैक्सट है रिबेट वाला, तुहानू छूट दी गई है, तुहाडी इनकम है पासबुक दे विच क्रेडिट हो जाएगी तो पासबुक का बैलेंस इनक्रीज़ हो जाएगा, तो कैश बुक दे विच कोई ट्रीटमेंट नहीं होया, तो पासबुक इज़ ग्रेटर दैन कैश बुक। आई होप तुहानू सारे दे सारे कॉजेज क्लीयर है, कॉजेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, जे तुहानू कॉजेज पता है तो प्रैक्टिकल तुसी बहुत आसानी दे नाल कर लोगे। हुण आपां इहदे कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं जिहदे नाल तुहानू ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है अ चेक ऑफ 5000 वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट वॉज नॉट येट कलैक्टेड बाय बैंक, एक चैक सीगा वो डिपॉजिट कर दिता गया 5000 का बैंक दे विच, पर बैंक ने उन्होंने हजे कलैक्ट नहीं किया, वट विल बी द इंपैक्ट। हुण ये है तुहाडा कोज नंबर 2, देखो कोज नंबर 2 की सीगा, चैक सेंड करता सी कलैक्शन वास्ते पर बैंक ने उन्होंने कोई भी कलैक्शन नहीं की, तो ये क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 का है। तो यदा इंपैक्ट की होएगा समझो, पहला 5000 डिपॉजिट कर दिते गए बैंक वालों, तुसी अज्यूम कर लिया कि तुहानू पेमेंट मिल गई है, तो मिल गई है इट मीनस तुसी कैश बुक दे विच इनक्रीज़ कर दिता है, पर पासबुक दे विच तो हजे कोई रिकॉर्ड नहीं होया, तो कैश बुक ज़्यादा बैलेंस शो करेगी एज कंपेयर टू पासबुक। हुण ऑप्शन देख लैंदे आ, कैश बुक बैलेंस विल बी मोर दैन द पासबुक बैलेंस विल बी मोर दैन द कैश बुक, बोथ शोज इक्वल बैलेंसेस, नो इफेक्ट, तो यदा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैश बुक ज़्यादा बैलेंस शो करेगी एज कंपेयर टू पासबुक। एक्सप्लेनेशन दे विच यही चीज़ ऐड की है, द अमाउंट इज़ रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज डिपॉजिटेड बट उन्होंने हजे कलैक्ट नहीं किया गया, ता करके पासबुक के विच उन्होंने अपेयर ही नहीं किया गया, तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो हो जाएगा एज कंपेयर टू पासबुक। होप तुहानू फर्स्ट क्वेश्चन क्लीयर है। सैकेंड क्वेश्चन है साडे कोल, द बैंक हैज़ क्रेडिटेड 1000 एज इंटरस्ट, बैंक ने तुहाडे पासबुक दे विच क्रेडिट किया है 1000 एज इंटरस्ट, मतलब पासबुक दे विच बैलेंस की हो गया इनक्रीज़ हो गया, पासबुक का बैलेंस की हो गया इनक्रीज़ हो गया, बट इनू तुसी कैश बुक दे विच हजे रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका इफेक्ट की होएगा, कैश बुक बैलेंस विल बी मोर दैन द पासबुक बैलेंस विल बी मोर दैन द कैश बुक बट बोथ विल शो ओवरड्राफ्ट या नो इफेक्ट। हुण पासबुक के बैलेंस इनक्रीज़ हो गया, कैश बुक के कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो पासबुक ज़्यादा हो शो की जाएगी एज कंपेयर टू कैश बुक, तो यदा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पासबुक विल शो मोर बैलेंस दैन कैश बुक, तो ऑप्शन बी यदा करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लो, बैंक ने क्रेडिट कर दिता है पासबुक के विच, पर तुहानू ओहदी इन्फॉर्मेशन हजे तक नहीं मिली, तो कैश बुक के विच उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, पासबुक ज़्यादा बैलेंस शो करेगा एज कंपेयर टू कैश बुक।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਬੈਂਕ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤੇ 500 ਫॉर ਬੈਂਕ ਚਾਰजेस। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ, passbook balance will be more, both balances will be equal, cash book balance will be more than passbook। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡੈਬਿਟ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਇਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ greater than passbook। होप क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड भी दोनों क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द पासबुक टू शो मोर बैलेंस दैन द कैश बुक। कहते किहड़े रीजनस करके पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होएगा एज कंपेयर टू कैश बुक। हुण देखो फर्स्ट रीजन है चैक इशू किए गए पर प्रेजेंट नहीं होए, ज़्यादा बैलेंस कौन शो करेगा। हुण चैक इशू कर दिते गए तुहाडे वल्लों, तुसीं कैश बुक दे विच उहनूं माइनस कर दिता, ठीक है, पर तुहाडे जिहड़े सप्लायर्स वगैरह जिन्हां नूं तुसीं चैक इशू किया उन्होंने हजे बैंक दे विच प्रेजेंट नहीं किया, तो पासबुक दे विच उहनूं कुछ भी नहीं किया गया, तो इस केस च भी कैश बुक तुहाडा लैस हो जाएगा एज कंपेयर टू पासबुक, ठीक है। इंटरस्ट क्रेडिट कर दिता गया बैंक के द्वारा, क्रेडिट का मतलब की है ऐड हो गया तुहाडे पासबुक दे विच, तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा सैकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग, कैश बुक का बैलेंस उन्ना ही रहेगा, तो फिर पासबुक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा कैश बुक के सैकेंड पॉइंट के नाल भी। डायरैक्ट डिपोजिटेड बाय द कस्टमर ने तुहाडे अकाउंट दे विच डायरैक्ट डिपोजिट करवाता, ਇਹਦਾ मतलब भी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, कैश बुक दे विच कोई ट्रीटमेंट नहीं होया, तो आप कह सकते हैं कैश बुक इज़ लैस दैन कंपेयर टू पासबुक। तो तीनों केसिस दे विच साडा जिहड़ा पासबुक का बैलेंस है वो ज़्यादा शो किया जाएगा एज कंपेयर टू कैश बुक। तो ऑल ऑफ दी अबव इहदा आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दे विच मैं यही चीज़ां लिखियां तुसीं देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन अज दी क्लास का फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है अ चैक इशूड फॉर द पेमेंट वॉज नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, वट इज़ द इफैक्ट। एक चैक इशू किया गया पेमेंट वास्ते पर प्रेजेंट नहीं किया गया बैंक दे विच। हुण इहदा पहला इफैक्ट देखो, तुसीं चैक पेमेंट वास्ते इशू किया तो तुसीं कैश बुक दे विच वो अमाउंट लैस करता कि तुहाडे वल्लों पेमेंट हो गई, पर पासबुक दे विच उहदा कोई ट्रीटमेंट नहीं होया क्योंकि पासबुक ते प्रेजेंट ही नहीं किया गया बैंक दे विच। हुण पहला ऑप्शन देखो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਲੈਸ ਬੈਲੈਂਸ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਮੋਰ ਬੈਲੈਂਸ, पासबुक शोज़ द लैस बैलेंस। हुण आ कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो कैश बुक घट बैलेंस शो कर रही है, पासबुक ज़्यादा बैलेंस शो कर रही है, इसका मतलब सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी इसका करैक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे विच आही चीज़ लिखी है कि चैक ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिता गया है कैश बुक दे विच, तो कैश बुक दे विच आपां उहनूं माइनस कर दिता है, बट वो बैंक दे विच हजे क्लीयर नहीं होया, तो बैंक दे विच उहदी कोई एंट्री नहीं हुई, इस करके कैश बुक का बैलेंस घट शो किया जाएगा एज कंपेयर टू पासबुक। सो ऑप्शन ए एंड बी करैक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 वास्ते। सो ये सी अज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन। आई होप तुहानूं अज की क्लास समझ आई होएगी, तुहानूं अज की क्लास वधिया लगी होएगी। जे तुहानूं क्लास वधिया लगी होए प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब करना और वीडियो नूं वध तों वध शेयर और लाइक जरूर करना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरा टैलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो फॉर रेगुलर अपडेट्स, और अपना फीडबैक मैनू कमेंट सैक्शन दे विच जरूर देना। मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच नैक्सट टॉपिक दे नाल BRS दे। थैंक यू सो मच।